Okay, welcome back. Now we'll start class 11. So the very first thing, now you please be bit fast. So the very first thing we are going to see the slope of a line. We are going to see slope of a line. Let's suppose that we have a line and this angle is equal to theta. If we say that this angle is equal to theta, then tan theta, it is represented by m, is known as slope. What is the slope of the line? M is equal to tan theta. It's also known as gradient. इसको हम ग्रेडियंट भी बोलते हैं, हिंदी वाले बच्चे इसको प्रवणता बोलते हैं. एक और बात ध्यान रखिएगा कि इस केस में थीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, यानी थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पर जो है स्लोप इज नॉट डिफाइंड. क्यों? क्योंकि वहां पर tan 90 की वैल्यू क्या होती है? इनफाइनाइट हो जाती है, नॉट डिफाइंड होती है. सो अकॉर्डिंगली वी से दैट इट इज नॉट डिफाइंड. So this is the very first thing. If you are given a question, find the slope of a line. There is one example, slope of a line if theta is equal to 60 degree A and if theta is equal to 135 degree. So if you go for the second one, you can say m is equal to tan, how much? 135 degree is equal to 1. Tan 90 plus 45 is equal to minus cot 45. याद आ रहा है? Tan 90 plus 45 is equal to cot 45, that is equal to minus 1. So this is the very first concept you have seen, that slope of a line is defined as tan theta. So this is, now the second one is slope of a line joining two points. Joining two points. Let's suppose that we have a line like this. This is origin, x-axis, y-axis, here is the origin. There is a point A, coordinate is x1, y1. There is a point B, coordinate is x2, y2. And you want to find the slope of this line. Let's suppose that this angle is equal to theta. क्या करना है? आपने यहां से परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया, यहां से परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, एक परपेंडिकुलर यहां कर दिया, इसको कह दिया कि ये C है. आपको पता है कि कोऑर्डिनेट ऑफ ए अगर है तो हम कहते हैं भाई देखो ये डिस्टेंस यहां से यहां तक, इफ यू राइट दिस वन एज के एंड दिस वन एज एल, तो ओ के की वैल्यू हो जाएगी कितनी? x1, और ओ एल की वैल्यू हो जाएगी हाउ मच? x2. इसका मतलब हुआ कि ये जो डिस्टेंस है AC जो है वो KL के बराबर होगी, एंड KL इज इक्वल टू हाउ मच? दिस वन इज इक्वल टू x2 माइनस x1, यानी ये डिस्टेंस जो है वो क्या हो गई? x2 माइनस x1. इसी तरह से यहां तक जो डिस्टेंस है ये हो गई y2, और ये डिस्टेंस है y1, तो ये y1 है तो ये भी y1 हो जाएगा, इसलिए ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? y2 माइनस y1. दैट्स ऑल. इफ दिस एंगल इज थीटा देन दिस एंगल इज ऑल्सो इक्वल टू थीटा. वी हैड 2 पॉइंट्स x1, y1, x2, y2 and its slope theta. Now you know that the slope m is equal to tan theta, and what is the value of tan theta in this triangle? In this triangle you can say it is BC by AC, meaning if you want you can write in triangle ABC, in triangle ABC tan theta is equal to वो थीटा हमने कैसे ले लिया? जो ये थीटा एंगल है तो ये थीटा है, क्योंकि ये दोनों लाइन क्या है? पैरेलल है. सो दे आर द करस्पॉन्डिंग एंगल्स. याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा? हाँ. सो ये हो गया. इसको अगर हम m कहते हैं तो BC की वैल्यू हो गई y2 माइनस y1, और इसकी वैल्यू हो गई x2 माइनस x1. सो स्लोप ऑफ अ लाइन joining two points is what? y2 माइनस y1 by x2 माइनस y1. ये दूसरा कंसेप्ट है. पहला कंसेप्ट क्या था? याद आ रहा है? पहला कंसेप्ट था m इज इक्वल टू tan थीटा. दूसरा कंसेप्ट हुआ y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1. सो दिस इज द सेकेंड कंसेप्ट. नाउ इफ यू आर गिवन अ क्वेश्चन, जस्ट वन एग्जांपल, फाइंड द स्लोप ऑफ
slope of a line joining a minus 1 2 and b 3 2. Find the slope of a line joining the points A minus 1 2 and B 3 2. So you can write M is equal to 2 minus, let me write here 3. I am writing here 3 minus 2 by 3 plus 1 is equal to 1 by 4. You can say M is equal to 1 by 4. अगर ये सिर्फ सपोज कर ली कि हमारे पास ये -1 2 है, हम कोई दूसरा पॉइंट ले लेते और हम कहते कि भाई ये बताइए कि अगर ये .22 है, आप सपोज कर लीजिए उस केस में, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में होगा 3 - 2, आप ध्यान से देखिएगा, दैट इज 1 by 1, दैट इज इक्वल टू 1, दिस इज इक्वल टू हाउ मच? हाँ, अगर एंगल पूछ देता तो कहते भाई tan 45 डिग्री, tan 45 इज इक्वल टू 1, therefore theta is equal to 45. So इस तरह से हम क्या निकालते हैं? How to find the slope of a line segment joining 2 points. This is the second one. Now the third one is, what is the condition of parallelism? Now there are two conditions. We are writing conditions. This is also an article. Condition of parallelism. माने दो लाइन अगर पैरेलल हैं तो उसकी कंडीशन दो ही बात होगी, एक तो होगा कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म और दूसरी होगी कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी. तो अगर आप सपोज कर लीजिए कि हमारे पास दो लाइन है, एक लाइन हमारे पास ये है, दिस इज L1, दिस इज द सेकेंड लाइन, दिस इज L2, दिस इज x एक्सिस, x डैश, origin y डैश. देयर आर टू लाइंस. Let's suppose that this angle is equal to theta 1 and this angle is equal to theta 2. आप ध्यान से देखिएगा मैं क्या लिख रहा हूं. मैंने दो लाइन लिख लिया. आपसे पहले पूछ रहा है कि भाई कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म क्या होगा. तो कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म के लिए कुछ अलग से ये सब बताने की जरूरत नहीं है. हमें पता है कि अगर हमारे पास दो लाइन है, अगर हम ऐसे कहते हैं कि हमारे पास ये दो लाइन है, ये थीटा 1 है, ये थीटा 2 है, तो थीटा 1 इज इक्वल टू कितना होगा? थीटा 2. आपको पता है कि थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2, tan थीटा 1 इज इक्वल टू tan थीटा 2, देयरफॉर m1 इज इक्वल टू m2. तो कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म क्या हो गई? कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म, ये फर्स्ट पॉइंट था, सेकेंड पॉइंट है, थर्ड वाला है. व्हाट इज द कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म? पैरेललिज्म कंडीशन क्या हो गई? m1 इज इक्वल टू m2. यहां तक तो क्लियर हो गया. ये दो लाइन पैरेलल हो गई. पैरेलल, उसमें कुछ अलग से आपको सोचने की जरूरत नहीं है. इफ टू लाइंस आर पैरेलल, then both the lines will make equal angles with positive direction of x-axis, and meaning if theta 1 and theta 2 are the two angles, ultimately theta 1 theta 2 will be equal. If two angles are equal, so if you take their tans, that is tan theta 1 and tan theta, they will also have the same value. And if tan theta 1 is equal to tan theta 2, means you can say m1 is equal to m2. So this is condition of parallelism. The problem starts when we are asked, what is the condition of perpendicularity? Perpendicularity. तो इस लाइन का जो स्लोप होगा, अच्छा इसको मान लेते हैं कि ये एंगल कितना है? 5. याद रखिए, हम कह रहे हैं कि इनके बीच का एंगल कितना है? ये ना भाई, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी यही है कि दोनों के बीच का एंगल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए. तो उस सिचुएशन में हमें पहले ये पता है, देखिए m इज इक्वल टू कितना हो गया? tan थीटा इज इक्वल टू m1. हमने तो मान लिया था लाइन L1 का स्लोप कितना है? m1. यहां तक तो क्लियर है. अब कह रहे हैं कि सर वो तो ठीक है, लेकिन फिर इसका क्या होगा? तो हम ये कह रहे हैं कि भाई देखो, जो फाई है वो होगा 90 डिग्री प्लस थीटा. जैसे देखिए फाई का मान कितना होगा? 90 डिग्री प्लस थीटा. इसका मतलब कि अगर आप tan फाई की बात करते हैं, जिसे हमने क्या बोला था? m2 बोला था, उसका स्लोप है, तो tan फाई का मान क्या होगा? ये tan 90 डिग्री प्लस थीटा, और tan 90 प्लस थीटा का मान क्या होगा जी?
माइनस कॉट थीटा होता है, और माइनस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हो, -1/tan थीटा लिख सकते हो, और tan थीटा को आपने क्या कहा था, -1/m1 का, यानी आपने क्या कर दिया, आप कह रहे हो m2 इक्वल टू कितना हो गया, -1/m1, यानी यहां से आपने कह दिया कि m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, मतलब लाइन खींच के भी हमने आपको बता दिया कि कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी। यहां पर कहा है कि एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइन के बीच का एंगल, हम ये मान के चलते हैं कि भाई एक लाइन जो है उसका स्लोप m1 है, यानी ये हम tan थीटा 1 है, और दूसरा जो है वो कितना है जी, वो tan थीटा 2 है, मीनिंग line 1 makes angle theta 1 with positive direction of x-axis and line 2 makes angle theta 2 with positive direction of x-axis। अगर ऐसा है तो हम मानते हैं कि ये बीच का एंगल थीटा है, याद रखिएगा। अगर ये थीटा होगा तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कि भाई देखो थीटा प्लस थीटा 1 शुड बी इक्वल टू थीटा 2। आपने पढ़ा होगा ना एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ द टू रिमोट इंटीरियर एंगल्स, क्लास 10 में पढ़ा है कि भूल गए? अच्छा, अगर भूल गए हैं तो आप ये मान लीजिए कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सही से ही बोल रहा हूँ, है ना, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, तो मैं सत्य बोल रहा हूँ कि भाई इन दोनों का एंगल का जो सम होता है ना, इतना होता है, किताब में ला लीजिएगा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो थीटा प्लस थीटा 1 इज इक्वल टू कितना हो गया, थीटा 2। अभी इसकी चिंता मत करिए, पहले इसको देखिए, थीटा प्लस थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2। तो उस केस में अगर कोई पूछता है भाई थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो हम बोलेंगे भाई थीटा की वैल्यू होगी वो थीटा 2 माइनस कितना होगा, थीटा 1। अगर हम कहते हैं सर हमको अगर tan थीटा निकालना है तो हम क्या निकालेंगे tan थीटा 2 माइनस थीटा 1। आपने tan a माइनस बी का फॉर्मूला पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में, नहीं पढ़ा है तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं, आप पढ़िएगा। इसकी वैल्यू होती है tan थीटा 2 माइनस tan थीटा 1 बाई 1 प्लस tan थीटा 2 इंटू tan थीटा 1, यानी ये कितना हो गया जी, m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू है tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस हाउ मच, m1 इंटू m2। अब देखिए मैंने आपसे बोला था कि भाई दो एंगल के बीच का एंगल निकालना है। मान लीजिए कि हम दो एंगल ऐसे करते हैं, हमने कह दिया भाई ये एंगल हमारा 60 डिग्री है। आप कह रहे हैं सर हम तो इसके बारे में सोच रहे थे, कोई जरूरी थोड़ी कि जैसे हम सोचेंगे वैसे आप सोचेगा, फिर संसार चलवे नहीं करेगा। कहता हम तो सर इसके बारे में सोच रहे थे। मतलब ये हुआ कि अगर ये दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो इनके बीच का एंगल या तो थीटा हो सकता है या फाई हो सकता है। मीनिंग अगर इसका एंगल कितना हो गया, फाई है, तो हम फाई को क्या लिखेंगे जी, फाई विल बी इक्वल टू हाउ मच, 180 डिग्री माइनस थीटा। इस व्यवस्था में थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो थीटा का मान कितना होगा, 180 माइनस थीटा। तो इसलिए अगर आपको tan फाई कहना हो, याद रखिए ये आप वाला एंगल बिटवीन टू लाइंस है। मैंने कहा ना कि भाई इसके बीच का एंगल, आप बोल रहे हैं हम इनके बीच का ये वाला एंगल निकालना चाहते हैं, तो उस सिचुएशन में tan फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan 180 डिग्री माइनस थीटा, एंड दैट इज इक्वल टू हाउ मच, माइनस tan थीटा। इसका मतलब क्या हुआ जी, ये माइनस हो गया m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m1 m2। दिस इज द वैल्यू ऑफ tan फाई हो गया। तो हमारे पास दो फार्मूला हो गया, या तो माइनस होगा या प्लस होगा। तो अब हम इसको जनरल हम ले लें, अगर हम इन जनरल थीटा को याद रखिए, हम थीटा का कंसेप्ट क्या लिखते हैं कि अगर हम कहते हैं कि इफ द एंगल थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस हाउ मच, m1 इंटू m2। तो कहेंगे सर वो तो ठीक है, लेकिन सर ये मॉड आपने क्यों ले लिया, मॉड हम इसलिए ले लिए कि इसका वैल्यू होता है प्लस माइनस। मतलब ये हुआ कि अगर इसकी वैल्यू क्या होगी जी, दो होगा ना, या तो इसकी वैल्यू प्लस होगी या माइनस होगी। तो अगर इसकी वैल्यू प्लस हो गई तो उस केस में थीटा का मान क्या होगा, एक्यूट हो जाएगा, और फाई का मान क्या होगा, ऑब्ट्यूज हो जाएगा, क्योंकि होना तो 180 डिग्री ही है ना भाई।
दो एंगल के बीच आप कह रहे हो, हमने कह दिया सर ये मेरा 60 डिग्री है, तो अगर 60 डिग्री है तो ये वाला कितना होगा जी, 120 डिग्री हो जाएगा। तो हमने कहा कि अगर थीटा एक्यूट है तो दूसरा वाला यानी तो फाई जिसको बोल रहे थे वो क्या होगा, ऑब्ट्यूज हो जाएगा, एंड वाइस वर्सा। अगर हम कहते हैं कि नहीं सर ये वाला हम निगेटिव होगा तो ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा। कहने का मतलब वो है कि दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर व्हाट, एंगल बिटवीन टू लाइंस। अब एक चीज और देखिए, अगर हमारे पास ये वाला है और हमसे कोई पूछता है कि भाई ये बताइए इसकी एक कर्लरी है, अगर L1 इज पैरेलल टू L2, याद रखिएगा मैं आपको वहां थोड़ा बीच में मैंने छोड़ दिया था, वहां सोचा था बचाने से पहले कि आपको यहां बता देंगे तो और क्लैरिटी हो जाएगी। अगर L1 इज पैरेलल टू L2, अगर L1 इज पैरेलल टू L2 होगा तो थीटा शुड बी इक्वल टू 0। दो लाइन अगर पैरेलल होती है तो उनके बीच का एंगल कितना होता है, 0 होता है। उस केस में ये जो M2 माइनस M1 बाई 1 प्लस M1 M2 है, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी M1 माइनस M2 की वैल्यू 0 होगी, यानी M1 इज इक्वल टू क्या होगा, M2 हो जाएगा। तो आपने पहले भी कहा था, लाइन भी खींच के देख रहे थे, मतलब हमने इसलिए कहा कि थोड़ा सा 11th में है तो 11th तरह से सोचिए, ये नहीं कि हाँ सर दो लाइन खींचेंगे दोनों एंगल बराबर होगा, tan थीटा tan थीटा हो जाए। अरे स्टाइल में देखो ना यार, करना वही है लेकिन थोड़ा सा स्टाइल देख लो। तो एक तो ये पार्ट है। इसकी जो सेकेंड कर्लरी है वो अब देखो जरा ध्यान से देखना, हम लिखते हैं कि अगर थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, 90 डिग्री, याद रखिएगा नीचे वाले का मान 0 होना पड़ेगा क्योंकि इट इज नॉट डिफाइंड, याद आ रहा। तो उस केस में हमारे पास 1 प्लस m1 इंटू m2 शुड बी इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। नाउ आई विल गिव वन क्वेश्चन, आप 1 मिनट में आप अपने से करके देखिए कि देखिए फाइंड द वैल्यू, एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आप लोग 1 मिनट में अपने से करिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड, हम लिख रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ k if the line joining, lines joining A k plus 2 3 k plus 2 3 and B 4 1 is, line होगा, is perpendicular to the line joining C 2 1 and D -1 5। ये आपके पास क्वेश्चन है, आप अपने से 1 मिनट के लिए करिए। आपने कर लिया? देखिए आपके पास A क्या है, A की वैल्यू है k प्लस 2 और 3 है, और B की वैल्यू है 4 1, C की वैल्यू है 2 1 और D की वैल्यू है 4 5। यही आपको दिया हुआ। कहा जा रहा है कि भाई ये दोनों लाइन से एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो अगर मान लेते हैं कि इसका जो स्लोप है, यानी किसका जी, हम बात कर रहे हैं AB का स्लोप। अगर AB का स्लोप आप निकालना चाहते हैं तो AB का स्लोप कितना होगा, मान लिया लेट्स सपोज दैट दिस इज M1, मैं AB की बात कर रहा हूं, तो M1 की वैल्यू कितनी होगी, 1 माइनस 3 बाई 4 माइनस k प्लस 2, मेरे साथ चल रहा है, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 विच इज इक्वल टू -2, और यहां होगा 2 माइनस k, और यू कैन हैव 2 बाई k माइनस 2। ये किसकी वैल्यू हो गई, स्लोप ऑफ M1 है। अगर आप CD की वैल्यू निकालें और आप कहते हो कि ये M2 है, तो इसका मान क्या होगा, हम उसको चाहे इसको मान लें, हम लिखते हैं 5 माइनस 1 बाई 4 माइनस 2 दैट इज 3 बाई 2, आई एम सॉरी इट इज 4 बाई 2 दैट इज इक्वल टू 2। ये किसकी वैल्यू हो गई, ये वैल्यू हो गई M2 की। आप कहते हो कि भाई दीज टू लाइन्स, अगर ये L1 है, आप क्या लिख रहे हो,
AB is perpendicular to how much? CD. अगर AB परपेंडिकुलर CD है तो क्या लिखोगे? M1 इंटू M2 इज इक्वल टू -1, यानी 2 बाई K माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू हाउ मच? -1, यानी माइनस K माइनस 2 इज इक्वल टू हाउ मच? 4. मतलब ये हुआ कि K माइनस 2 इज इक्वल टू -4, therefore K is equal to -4 plus 2 is equal to -. Anyway, this is the condition of. अब देखिए, मैंने ये तो एंगल से कर दिया, एंगल से बता दिया, लेकिन ये वाला जो था ना, ये जो कंडीशन थी, आपने पहले एक और देख लिया, tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m1 इंटू m2. हमने इतनी चीजें अब तक देख लिया. बहुत गर्मी है, आप लोगों को भी लग रही होगी, लेकिन यहाँ थोड़ा ज्यादा लग रही है. तो देखिए, ये वाला जो था, इट वाज दिस क्वेश्चन, मैंने आपको वहां छोड़ा था, फिर एंगल से बता दिया था. तो आपके मन में ये विचार नहीं आना चाहिए, मेरे सामने कुछ लोग हैं, तो इन लोगों का कहना ये है कि सर जरा उसको जरा ठीक से एक्सप्लेन कर दीजिए और पहले की तरह से इजीली में करिए. तो मैं कर दे रहा हूँ. देखिए, आप कह रहे हो कि हमारे पास एक लाइन ये लाइन है L1, ये हो गया एंगल थीटा. मान लो कि दूसरी लाइन है, ये लाइन क्या है? L2 है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये ओरिजिन है. तो इस लाइन का जो स्लोप होगा, अच्छा इसको मान लेते हैं कि ये एंगल कितना है? फाई. याद रखिए, हम कह रहे हैं कि इनके बीच का एंगल कितना है? ये ना भाई, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी यही है कि दोनों के बीच का एंगल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए. तो उस सिचुएशन में हमें पहले ये पता है, देखिए m इज इक्वल टू कितना हो गया? tan थीटा इज इक्वल टू m1. हमने तो मान लिया था लाइन L1 का स्लोप कितना है? m1. यहाँ तक तो क्लियर है. अब कह रहे हैं कि सर वो तो ठीक है, लेकिन फिर इसका क्या होगा? तो हम ये कह रहे हैं कि भाई देखो, जो फाई है वो होगा 90 डिग्री प्लस थीटा. जैसे देखिए, फाई का मान कितना होगा? 90 डिग्री प्लस थीटा. इसका मतलब कि अगर आप tan फाई की बात करते हैं, जिसे हमने क्या बोला था? m2 बोला था, उसका स्लोप है. तो tan फाई का मान क्या होगा? ये tan 90 डिग्री प्लस थीटा, और tan 90 प्लस थीटा का मान क्या होगा जी? माइनस कॉट थीटा होता है. और माइनस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हो? -1 बाई tan थीटा लिख सकते हो. और tan थीटा को आपने क्या कहा था? -1 बाई m1 का. यानी आपने क्या कर दिया? आप कह रहे हो m2 इक्वल टू कितना हो गया? -1 बाई, यानी यहां से आपने कह दिया कि m1 इंटू m2 इक्वल टू -1. मतलब लाइन खींच के भी हमने आपको बता दिया कि कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी क्या. आई होप इट्स क्लियर. सो फार वी हैव सीन slope, then slope of the line joining 2 points. Then we have seen condition of parallelism, then condition of perpendicularity, and then we have seen angle between two lines in terms of m1 and m2. Now we will see different form of straight lines. देखिए, मैं लिख रहा हूं, इसको बोलते हैं वेरियस फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइंस. अब डिफरेंट फॉर्म में हम बात. सबसे पहला, now we are going for what? We are going for the equation of lines. प्रैक्टिकली पहला वाला जो था वो तो ठीक ठाक था, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा शुरू होगा यहाँ से. और मैं थोड़ा सा स्लो हो जा रहा हूँ, मैं बहुत तेज नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत हड़बड़ी नहीं है. अगर यहाँ से नहीं हो पाए, जितना यहाँ हो पाएगा. अदरवाइज मीन्स आई मेक द वीडियो एंड देन you can see from there. So we are going to see various forms of. सबसे फर्स्ट, जो फर्स्ट इसका फॉर्म है, हम कहते हैं कि भाई अगर हमारे पास there is a straight line which is parallel to x axis,
याद रखिएगा, मैं कह रहा हूं देयर इज ए लाइन व्हाट पैरेलल टू एक्सेस। एक्सेस मतलब क्या, एक्स एक्सिस भी हो सकता है, वाई एक्सिस भी हो सकता है। मान लीजिए कि हमारे पास एक लाइन है L1, इसकी डिस्टेंस जो है वो b है, मैं जानबूझ के ले रहा हूं b। तो इस केस इस लाइन की इक्वेशन कितना होगा, इस लाइन का इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू बी, क्योंकि वो पैरेलल टू क्या है, एक्स एक्सिस। लेकिन अगर यही हम नीचे उस b को कर लेते हैं, ये ओरिजिन है, अगर नीचे कर लेते हैं तो इस लाइन का इक्वेशन कितना हो जाएगा, ये तो इसका हो गया, इसका कितना होगा y इज इक्वल टू माइनस पी। ये आपको क्लास 9 में भी बताया गया था जब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे थे या लीनियर इक्वेशंस पढ़ रहे थे। इसी तरह से अगर हमारे पास x एक्सिस y एक्सिस ओरिजिन है और एक लाइन जो है डिस्टेंस a पर है और ये भी a पर अगर इस साइड में दिया हुआ है, ऐसे कोई लाइन है, ये L1 है, ये L2 है, इस लाइन का इक्वेशन कितना होगा, x इक्वल टू a, और इस लाइन का इक्वेशन होगा x इक्वल टू माइनस। यानी हमने अभी जो देखा वो दो देखा, x इज इक्वल टू प्लस माइनस a एंड y इज इक्वल टू व्हाट, प्लस माइनस b। The equation of lines parallel to y-axis and at distance a in the right hand side of y-axis is x is equal to a. To the left hand side, x is equal to minus a. Above x-axis, it is, याद रखिए, to the right of y-axis, x is equal to a. To the left of y-axis, x is equal to minus a. Above x-axis, y is equal to b, and below y is equal to minus b. So these are the things you have seen even in start 9, but just I wanted to know. Now, I am going to take up one question, and that is the second one, slope intercept form. Slope intercept form. You want to find the equation of a straight line in slope intercept form. देखो नाम से ही स्पष्ट है यार, स्लोप इंटरसेप्ट मींस क्या, इसका स्लोप होगा और इंटरसेप्ट होगा। हम कहते हैं कि लेट अस फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, मेरे साथ साथ चलिएगा, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन which makes angle theta with positive direction of x axis and cuts an intercept c from positive direction of y axis, meaning आप किसकी बात कर रहे हो, x एक्सिस है, y एक्सिस है, ओरिजिन है। यहाँ आपने कहा कि भाई ये हमारे पास एक लाइन है जो x एक्सिस से कितना डिस्टेंस काटता है, क्या एंगल बनाता है, थीटा। याद रखिए मैं कह रहा हूँ थीटा, लेकिन हम किसकी बात सोच रहे हैं, m के बारे में सोच रहे हैं। क्यों, क्योंकि m दिया हुआ है, सो वी आर गिवन व्हाट, m इज इक्वल टू हाउ मच, tan थीटा, दिस इज गिवन। अगर स्लोप दिया हुआ है मतलब उस एंगल का, उस लाइन का क्या दिया है, स्लोप दिया हुआ है, तो ये एंगल थीटा हो गया। एंड दिस इंटरसेप्ट इज हाउ मच, c। ये y एक्सिस पर कितना इंटरसेप्ट काट रहा है, c काट रहा है। तो कहते फिर इसका इक्वेशन निकालिए। देखिए कभी भी आपको लाइन ऑफ इक्वेशन, सर्किल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला कुछ भी निकालना होगा तो आपको एक रनिंग कोऑर्डिनेट लेना पड़ेगा। हमने कहा कि लेट्स सपोज दैट देयर इज अ पॉइंट pxy ऑन द लाइन। आपने कह दिया कि भाई इस पॉइंट P इज अ पॉइंट ऑन द लाइन। अगर ये पॉइंट है तो आप यहां से परपेंडिकुलर ड्रा करिए PQ। ये मान लीजिए कि ये A है और यहां से आप कर लीजिए R। ध्यान से देखिए, अब आपको कुछ कुछ जानकारी है, आपको पता है कि ये जो डिस्टेंस है ये x है और यहां से यहां तक डिस्टेंस y है, ये c है। हम इस कंसेप्ट को यूज कर चुके हैं, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, y माइनस c। तो ये अगर x है तो ये भी x होगा, यानी ये x हो गया, y माइनस c है, ये थीटा है, तो ये भी एंगल कितना होगा, इस हम कंसेप्ट ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। तो अब हम कहते हैं कि इन ट्रायंगल PRA व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा। याद रखिएगा एक्स वाई तो आएगा ही आएगा क्योंकि रनिंग कोऑर्डिनेट है, आपको लाना है m और c के फॉर्म में। तो हमने कहा दिस इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, इट इज PR by AR
यानी m इज इक्वल टू y माइनस c बाई x, दैट इज mx इज इक्वल टू y माइनस c, हेंस y इज इक्वल टू mx प्लस c. दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. ये किसके फॉर्म में हो गया जी? y is equal to mx plus c. ये कौन सा है? This is the equation of a straight line in slope intercept form. Slope इसमें क्या है? m है और c क्या है? इंटरसेप्ट. अब इसमें सिंपल से एक दो एग्जाम्पल भी करते चलते हैं, क्योंकि देखिए आई विल बी मेकिंग सेपरेट वीडियो फॉर द क्वेश्चंस, दैट इज द प्रैक्टिस, जिसमें एनसीईआरटी के सभी अच्छे क्वेश्चंस कर लेंगे. उसके अलावा हम अपनी किताब के भी क्वेश्चंस लेंगे या कुछ अलग से क्वेश्चंस हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस लेंगे, वो अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि अभी एक साथ पॉसिबल नहीं है. एक छोटा सा एग्जांपल देखिए. फाइंड द इक्वेशन. एग्जांपल 1 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन which is inclined at 60 degree with positive x-axis and cuts an intercept of 3/2 from positive y-axis. Very simple. What is given? Solution given. Theta is equal to how much? 60 degree. याद रखिएगा, थीटा का मान कितना है जी? 60 डिग्री. और c is equal to कितना है? 3/2. Therefore, what is m? m is equal to tan 60 degree, that is equal to √3. इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा? रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन y is equal to mx plus c. y is equal to the value of m is how much? √3x plus c is equal to 3/2. इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा 2y is equal to 2√3x plus 3. जल्दी हम आंसर इस तरह से लिखते हैं, -2y plus 3 is equal to 0. This is the equation of straight line. क्या लिखते हैं? Standard form of the equation is ax plus by plus c is equal to. ये हो गया आपका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. अब देखिए, अब इसके जो क्वेश्चंस होंगे, जैसे अगर सपोज करिए मैं आपको जस्ट हिंट दे रहा हूं, हमारे पास एक लाइन है, ये यहां से 30 डिग्री एंगल में आता है. कहता है कि दिस एंगल इज रोटेटेड, मेरे साथ साथ नेविगेट करिए, ट्राई टू नेविगेट विद मी, कि दिस लाइन इज रोटेटेड अराउंड ए इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बाय 90 डिग्री. मेरे साथ चल रहे हो? हम क्या बोल रहे हैं? 90 डिग्री अगर हम करते हैं तो ये वाला क्या होगा? यहां से 90 डिग्री ऐसे हो जाए. ये वाला कितना हो गया जी? 90 डिग्री. इस लाइन की जो पोजीशन है नई वाली ये. एंड देन बोलता है कि कट्स दी क्या इंटरसेप्ट 5 है, 7 है, 3 है, इसका डबल है, मतलब ये वाला वैल्यू दे दिया. तो जो आपके पास एंगल था वो m इज इक्वल टू क्या होगा? वो 120 डिग्री हो जाएगा. याद रखिएगा, इसके अराउंड क्या किया गया? रोटेट किया गया. तो आप ये 30 डिग्री है, हम मान निकल तैयार है. मान लीजिए 30 डिग्री है, कहता है कि ये -3/2 है. कहता है कि जब उधर जाता है तो क्या करता है? इसका कुछ पार्ट हो जाता है या इसे इतना गुना बढ़ जाता है, या कह देता है कि नए वाली स्थिति में इसका इंटरसेप्ट इतना हो जाता है. क्लियर है? लेकिन आपकी असली समस्या इंटरसेप्ट से नहीं है, आपकी समस्या नए वाले एंगल से. ये जो पहला वाला इंक्लिनेशन था वो 30 डिग्री है, और जो नई सिचुएशन में व्हेन इट इज रोटेटेड अबाउट ए,
यहाँ पर उसको ऐसे पकड़ लीजिएगा, दबा दीजिएगा पैर से, जब घूमेगा तो ये यही रहेगा, मतलब घूमते घूमते वहीं आ जाएगा। हमारी बात समझ आ रही है? तो दिस एंगल विल बिकम व्हाट, रिक्वायर्ड एंगल, एंड दैट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ स्लोप। सो दिस इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। दूसरा वन, अगर हम कहते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म, एक और आठ के दिए इंटरसेप्ट फॉर्म, ये दूसरा है। We have to find the equation of straight line in intercept. Intercept form हम करना चाहते हैं, हम कहते हैं कि let a line makes intercepts A and B on x-axis, then we have to find the equation of straight line. देखिए, अगर हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे पास ये x एक्सिस है, y एक्सिस है, ओरिजिन है, x डैश है, y डैश है, ये लाइन है, ये लाइन कितनी है जी, L है। आप क्या कह रहे हो, ये A है और ये क्या है, B है, ये इंटरसेप्ट फॉर्म। A line is making intercept A and B on x and y axis respectively, then you have to find the equation of line. अब ध्यान से देखिएगा, आप कह रहे हो कि let's suppose that this one passes through point Q and this one is R. आप क्या कह रहे हो, क्या दिया हुआ है, given OQ is equal to how much, A, OR is equal to how much, B. Therefore, what is the coordinate of Q? Can anyone ask me think? Coordinate of Q should be equal to how much, A0. तो coordinate of Q कितना हो गया जी, A0. What is the coordinate of R? Y एक्सिस पर है जी, याद रखते हैं, Y एक्सिस पर इसका मान 0 होता है, फिर कितना हो गया, 0 B हो गया। तो आपने कहा भाई Q का हो गया और R का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 0 B। अब क्या होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। भाई अब क्या हो गया, हमने कहा कि लेट्स सपोज दैट देयर इज ए पॉइंट PXY, कहां, ऑन द लाइन। एक आपको पॉइंट लाना पड़ेगा जिसको रनिंग कोऑर्डिनेट बोलते हैं। तो हमने PXY, हम कहते हैं कि लेट PXY be a point on line L। लाइन L पर हमारे पास एक पॉइंट P हो। अब अगर ये पॉइंट P है तो हम लोग क्या करेंगे भाई, अब देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, मैं कह रहा हूं क्लियरली। अच्छा देखिए, हम लोग हमेशा लिखते हैं, बच्चा लोग भी लिखता है, नहीं बच्चे भी लिखते हैं, हर जगह लिखते हैं क्लियरली। क्लियरली मतलब क्या हुआ, अच्छा टीचर भी क्या, हम लोग क्या करते हैं, जब बच्चा क्लियरली तो हम लोग उसको नंबर दे देते हैं। क्यों, अगर हम लोग को नहीं समझ में आता तो भी नंबर देते हैं। क्यों, हम सभी बच्चा, जब बच्चा को क्लियर है, हमको क्लियर नहीं होता, कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, भाई चलो नंबर दे, बच्चा बच्चा को क्लियर है, हम बाद में देखेंगे क्या क्लियर होगा, ठीक है, इसलिए हमेशा क्लियरली लिखा कीजिए। इट्स लाइटर जोन, लाइटर नोट। सो देखिए मैं यहां लिख रहा हूं क्लियरली, द पॉइंट्स Q, P and R आर कोलिनियर है क्या, ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं क्या? तो अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो हमारे पास तो पहले से पता है जी, आपको याद है, आपको याद है x1, याद है x1 y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस y1, x3 y1 माइनस y2 इज इक्वल 0। तो अब इसमें हम x1 लिखते हैं, इसको बोलते हैं x1 y1, x2 y2, x3 y। तो x1 a, y2 का मान y, y3 का मान b, x1 y2 माइनस y3, x b माइनस 0, x2 y3 माइनस, और थर्ड वन इज 0, उसके बाद कुछ भी रहेगा दैट बिकम 0, क्योंकि हमने इसको x3 मान लिया। जब सिंप्लीफाई करते हैं तो हम कहते हैं ay माइनस ab प्लस bx इज इक्वल 0। मतलब ये हुआ कि bx प्लस ay इज इक्वल टू ab। अगर ab से डिवाइड कर दीजिएगा तो हम क्या लिखेंगे, bx बाई ab
प्लस AY बाई AB इज इक्वल टू 1, यानी X बाई A प्लस Y बाई B इज इक्वल टू 1। ये वाला क्या हो गया? दिस इज दी इंटरसेप्ट फॉर्म। याद रखिए, पहला वाला था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ये वाला क्या हो गया? इंटरसेप्ट फॉर्म। तो आपने एक फॉर्मूला देख लिया, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1, इंटरसेप्ट फॉर्म में हो गया। इसको हम क्या बोलते हैं? इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। मींस इफ a line makes intercepts small a and b on x and y axis, that is a and b on x and y axis, then the equation is x by a plus y by b is equal to 1। एक छोटा सा एग्जाम्पल देखिए, हम कहते हैं कि फाइंड दी, एक एग्जाम्पल देखते हैं, फाइंड दी इक्वेशन ऑफ अ लाइन whose intercepts on x and y axis are a and b respectively, such that, अब देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, पहला मैं कह रहा हूं a is equal to 3/2 and b is equal to -2/5। मैं आपको इस एग्जाम्पल से ये बताना चाहता हूं कि कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा क्या होगा, प्लस ही होगा, माइनस भी हो सकता। सेकेंड, a is equal to 2b and line passes through 2, 3। याद रखिएगा, मैं कह रहा हूं a is equal to b, लाइन passes through। और थर्ड में जो बता रहा हूं वो ये है कि द इंटरसेप्ट, ध्यान से सुनिएगा, इंटरसेप्ट बिटवीन द एक्सेस is bisected at 4,3। पॉइंट 4,3 पर वो पॉइंट, वो 4,3 होगा, 4-3 होगा, जो भी होगा उस पर बाइसेक्ट। देखिए ये हम सिर्फ 2 दिन लिए हैं, बाकी जो प्रैक्टिस हम लोग जब करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, मैंने जस्ट आई वांटेड टू गिव सम आइडिया सो दैट यू विल हैव सम दिस वन। एज फar फर्स्ट वन इज कंसर्न, यू नो x by a प्लस y by b इक्वल टू 1, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। पहले वाले में कोई दिक्कत नहीं, क्यों? हम कहते हैं साहब x by 3/2 प्लस y by -2/5 इक्वल टू 1। अब सिंप्लीफाई करिए, 2x by 3 minus 5y by 2 is equal to 1। सिंप्लीफाई करके लिख दीजिए, दैट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। सो ये पहला वाला तो बच्चा लोगों का सवाल है। दूसरे वाले में थोड़ा सा कह रहा है, हमने कहा कि x by a प्लस y by b इक्वल टू 1, आपने मान लिया। आप जो सेकेंड क्वेश्चन को इसको देख रहे हैं तो आप क्या लिख रहे हो? a इज इक्वल टू 2b दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? a इज इक्वल टू 2b। तो आप क्या लिखोगे? देयरफॉर इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, ये क्या हो जाएगा जी? x by 2b प्लस y by b इक्वल टू 1। मैंने कोई नया काम नहीं किया है सर, मैं क्या लिख रहा हूँ? a इज इक्वल टू 2b कह रहा हूँ, जहां a है वहां पर हम क्या लिख रहे हैं? 2b। तो ये तो भाई समझ में आ रहा है, ये x मतलब इसको लिख सकते हैं x प्लस 2y। एक स्टेप में छोड़ रहा हूं, मैं लिखता हूं 2b x प्लस 2y इज इक्वल टू 1। दिस इंप्लाई दैट x प्लस 2y इज इक्वल टू 2b। ये कौन सी कंडीशन है? व्हेन द कंडीशन इज गिवन a इज इक्वल टू 2b। लेकिन आपसे कह रहा है ये जो लाइन है इट पासेस थ्रू द पॉइंट 2, 3। क्या दिया हुआ है?
इक्वेशन नंबर 2 passes थ्रू किस पॉइंट से, 2 3 से, किसी भी पॉइंट से गुजरता है तो वो पॉइंट उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। यही सीधी सी बात है, सीधा फंडा यही है। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर 2 + 2 × 3 = 2b। दिस इंप्लाइज दैट b = 4। अब अगर आपने b का मान 4 कर दिया तो इक्वेशन का मान कितना होगा जी? देयरफॉर द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज x + 2y = b = 4। मतलब क्या हुआ? 8 हो गया। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन इन द सेकंड केस। अब सबसे जो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जो एनसीईआरटी में भी इन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ है कि साहब ये जो लाइन है ना, इस पॉइंट पर बाइसेक्ट होता है क्या? द इंटरसेप्ट। आप कह रहे थे कि सर जी, अरे अभी आप तो इसको बोल रहे थे कि इंटरसेप्ट है, इसको बोलिए ये वाला कौन सा इंटरसेप्ट है? ये वाला जो इंटरसेप्ट है वो ये वाला है। अगर मान लीजिए हम कहते हैं P है और ये Q है, आपने क्या कहा था? इक्वेशन क्या था? x/a + y/b = 1। मतलब ये हुआ, ध्यान से देखिएगा कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ P? कोऑर्डिनेट ऑफ P इज a0। हमेशा ध्यान रखिएगा इस लाइन का। अरे y0 x = a, और Q का कोऑर्डिनेट कितना होगा जी? 0b। ये 2 पॉइंट है, लेकिन आपसे कह रहा है कि हमारे पास एक ऐसा पॉइंट है बीच में, यहां पर मान लेते हैं ये पॉइंट क्या है जी? 4 3 है। कह रहा है कि 4 3 इज द मीट पॉइंट ऑफ द इंटरसेप्ट मेड बाय द 2 एक्सिस ऑन द लाइन। कंफ्यूजन हो रहा है? ये लाइन का इंटरसेप्ट था x एक्सिस पर, ये इंटरसेप्ट था y एक्सिस पर, लेकिन ये जो इंटरसेप्ट है, दिस इज द इंटरसेप्ट ऑन द लाइन बिटवीन 2 एक्सिस। ये भी इंटरसेप्ट ही है। क्लियर हो गया? तो इस इंटरसेप्ट का मीट पॉइंट क्या है? 4 3 है। आप सोच रहे होंगे ना कि सब क्या क्या दे रहा है जी? कुछ नहीं है, वही वाला है। तो अब देखिए, अब बड़ा आसान हो गया। अगर ये इसका मीट पॉइंट है, हम लिख रहे हैं क्लियरली। अच्छा, ये 4 3 के पर कुछ भी हो सकता है, थोड़ा सराफत दिखाइएगा जब रफ फिगर बनाइएगा। और 4 - 3 है तो लाइन को इधर से खींच दीजिएगा, भले ही ये भी लिखिए, उसको चिन्ह बदलने की जरूरत नहीं है, ए बी चलने दीजिए, वो अपने आप वैल्यू निकल जाएगा। तो हमने इस केस में क्या लिखा है? फिर मैं वही लिख रहा हूं क्लियरली, क्या? M इज द व्हाट? मीट पॉइंट ऑफ, किसका मीट पॉइंट है जी? मीट पॉइंट ऑफ PQ। PQ का मीट पॉइंट है। देयरफॉर a + 0/2 = 4। दिस इंप्लाई दैट a = 8। कुछ आ रहा है? गुदगुदी हो रही है? और दूसरा 0 + b/2 = 3। This imply that b = 6. Means we have got a = 8 and b = 6. Therefore, equation of line is x/a, y/b = 1, x/8 plus y/6 = 1. This imply that कितना होगा जी दोनों का? It is 24, it is 3x, it is 4y = 1, यानी 3x plus 4y = 24, 3x plus 4y minus 24 = 0। तो ये वाला क्या हो गया? ये हो गया इंटरसेप्ट फॉर्म। तो हमने क्या क्या देख लिया? पैरेलल हो गया, इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया, और ये क्या हो गया? ये सॉरी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, और ये वाला क्या है? इंटरसेप्ट फॉर्म है।